ہو جائیے گا بیٹا خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ یار. ہاں بولے فاروق بھائی. اچھا بھائی دیکھیں، یہ اس طرح کے سانحے کے بعد میڈیا سے بات کرنا ویسے بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جو ماہم کے والدین ہے، 6 سالہ معصوم پھولوں جیسی اس قوم کی بیٹی ماہم، جس کے ساتھ درندگی ہوئی، ہم آئے ہیں ان کے والدین اور اس کی بہنوں اور دیگر اہل محلہ عزیز و اقارب کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگ آئے ہیں تو وہ تصویریں بنوانے آتے ہیں، فوٹو کھنچوانے آتے ہیں اور اس طرح میڈیا کے سامنے پبلسٹی کرتے ہیں. لیکن یقین مانیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل ہے. ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ میڈیا آتا ہے تو جس طرح میری قوم کی بیٹی زینب کے ساتھ ہونے والی درندگی اور سانحہ پوری دنیا کے ضمیر کو اس نے جھنجھوڑا، ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی ہے کہ ایک تو ہم مرہم رکھیں ماہم کے والدین، اس کی بہنوں کے زخموں پر. اس پھول جیسی بچی جس کے والدین نے کتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، آج ان آنکھوں میں اندھیرے ہیں. آج وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے. کس لیے؟ کہ آج حکومتیں، ارباب اقتدار حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، اور شاید ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی بھی کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہو رہی ہے. اس واقعے کی مذمت تو ہر سیاسی آدمی بھی کرے گا، ہر سماجی آدمی بھی اس کی مذمت کرے گا. تو میں روایتی مذمت میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ مطالبہ کروں گا کہ جو لواحقین ہے ماہم کے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف ہونا چاہیے جس طرح کا انصاف زینب کے والد کے ساتھ ہوا تھا، زینب کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا تھا. اور وزیر اعظم پاکستان نے ہدایتیں دی تھی. میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ایک سٹیٹمنٹ مانگتا ہوں، یہ کورنگی میں پاکستان کی قوم کی پہلی بیٹی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے. یہ 5ویں یا 6ٹھی معصوم پھولوں جیسی شہزادی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا، جس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ 5-6 بیٹیاں ہیں کورنگی ہی کے علاقے کی. تو سوچے کہ کراچی کے اور جو علاقے، گنجان علاقے، وہاں کیا حال ہوگا. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ وہ بیان دیں، اسے ظلم کہیں، اور جو ظالم ہیں انہیں فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے اور عبرت ناک سزا دے، ایسی سزا دے جس کا عوامی مطالبہ ہو. اگر عوام یہ کہے کہ اسے سر عام پھانسی دی جائے تو آئین اور قانون کچھ بھی کہے. اگر یہ عوامی جذبات ہیں، یہ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، اگر عوام یہ کہے تو پھر آئین اور قانون اور عدالتوں کو بھی عوام کی آواز کو سننا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. جس طرح زینب کے سانحے پر پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کھڑے ہوئے تھے، ماہم کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بھی میں پاکستانی قوم اور اس کی غیرت اور ناموس کو للکارتا ہوں، اور اس سے یہ کہتا ہوں کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو. اور عبدالخالق بھائی، ان کی وائف میری بھابھی، ان کے ساتھ کھڑی ہو پوری قوم. 22 کروڑ عوام، 23 کروڑ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ وہ بیانات دیں اور وہ اس معاملے کی نگرانی کریں. قاتلوں کی گرفتاری تک روزانہ کی بنیاد پر
कानून नाफिज करने वालों और जो इंतजामिया है उससे बास पुरस करे, उन्हें इस काम पर लगाएं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर होता रहेगा, बाकी क्राइम्स एड्रेस होते रहेंगे, लेकिन ये वो जुर्म है जिससे अर्श भी हिल जाता है। फर्श तो जो है वो फर्श तो जमीन पर रहता नहीं है, अर्श हिल जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए ज़ैनब की, ये माहम के वालिदैन के लिए, माहम की बहनों के लिए, उसके अहले खाना अजीज वकारिब और ये मोहल्ले के लोगों के लिए। अब ये पूरे जी एरिया कोरंगी सेक्टर, यार आप कोरंगी सेक्टर 5.5 के मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 80 गज के मकान में रहने वाले ये अब्दुल खालिक और किराए पर। अब क्या ये 18,000 रुपए आमदनी है और उसमें 3 बेटियों की किफालत, उनकी तालीम, और जाहिर है कि इनकी वाइफ, ये अगर 5 अफराद हैं तो वैसे ही जिंदगी और गुजारा मुश्किल है। तो उसके बाद फिर बचा क्या? ये 3 बेटियों के लिए आंखों में ख्वाब थे कि इन्हें रुखसत करेंगे और उस वक्त तक कुछ बचा कर रखेंगे और उस वक्त तक कुछ हालात अच्छे होंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छे घरों में जाएंगी, अपना घर बसाएंगी। इन्हीं का घर उजाड़ दिया गया, बसे हुए घर को उजाड़ दिया गया। जुल्म का पहाड़ है, जुल्म की इंतहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कराची की बेटी हो, पंजाब की बेटी हो, बेटियां सबकी साझी होती है। बेटियां बेटियां होती हैं, फूलों की मानिंद होती हैं, शहजादियां होती हैं। उन पर होने वाला जुल्म तुम्हारी हुकूमतों के लिए भी कोई अच्छा शुगुन नहीं है। अगर माशरे में ऐसे दरिंदे खुलेआम फिर रहे हैं, इस रुझान को कैसे रोकेंगे? कम्युनिटी पुलिस कहाँ है? मोहल्ले के रजाकार कहाँ हैं? समाजी तंजीमों की सरपरस्ती कहाँ है कि वो, और फिर हमारे तालीम और निसाब और हमारी स्कूल और कॉलेज में ये तालीम कहाँ है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को इस तरह के दरिंदों से बचने की तालीम दे सके? कहाँ पर है ये सब कुछ? तो हमें अपने निसाब को भी देखना है बाजी। हमारे निसाब में भी ये चीजें नहीं है कि हम अपनी बेटियों को बताएं कि जो अजनबी हैं उनसे किस तरह बचना है, किसी जगह अकेले नहीं जाना है। हमें अपनी बेटियों की जिंदगियों की हिफाजत और उसकी जमानत चाहिए हुकूमत से। आइंदा किसी बेटी के साथ ये वाकया ना हो तो शायद अब्दुल खालिक भाई, भाभी और माहम की 2 बहनों के जख्म भी शायद भर जाए। अगर आइंदा किसी बेटी के साथ ये वाकया ना हो, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। कातिलों को, ज्यादती करने वालों को, जुल्म और बर्बरियत करने वाले दरिंदों को सरे आम सजा दी जानी चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और इस रुझान को खत्म करने के लिए हुकूमत को इक़दाम उठाना चाहिए और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इस मामले पर नजर रख के बासपुरस करें कानून नाफिज करने वालों और इंतजामियों से। और इंसानियत अगर कहीं पर है तो थोड़े आंसू पहुंचने के लिए कोई मुआवजे का ऐलान भी हो, सिर्फ अब्दुल खालिक भाई की बेटी के लिए नहीं। ये 5वीं या 6ठी बेटी है जो दरिंदगी का शिकार हुई। जो और बेटियां भी हुई कोरंगी के इलाके में, उनके वालिदैन, उनके अहले खाना के लिए भी किसी न किसी ऐसे मुआवजे का ऐलान करें ताकि अपनी बाकी जो बेटियां हैं उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर सके, उनके लिए रहने की कोई मुनासिब जगह ले सके, वो शर्मिंदा ताबीर हों, वो बच्चियां कौम की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हों। वो ये ख्वाब सजाती हैं अच्छे घरों में रुखसत हो, उन घरों को जन्नत बनाए। मैं ये समझता हूं कि अब इस जुल्म को खत्म होना चाहिए, इसे रुकना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए।
قاتلوں کو गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी इस कोरंगी के एरिया में 4 से 5 वाकयात इस किस्म के हो चुके हैं। इससे पहले भी कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस इस पे जो है अब आप सेंटर आ जाइएगा, रिवायती वो सेंटर आ जाइएगा। तो आईजी सिंध से क्या मुतालबा करते हैं कि मुलजिमान की गिरफ्तारी पुलिस के? देखिए, मैंने तो वजीर आला से कह दिया, आईजी सिंध तो उनके अंडर में है ना, मैंने तो वजीर आजम से कह दिया, अब रेंजर्स भी उनके अंडर में और इदारे भी उनके अंडर में। तो ये हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए ये सारे रियासती इदारे भी हरकत में आए ना, ये भी अपनी इंटेलिजेंस दें, ये भी देखें कि इस इलाके में इनका पूरे यहाँ की आवाम ने मुझे कहा कि ये जो कौन सा ग्राउंड है भाई, ये करीम ग्राउंड, हमने इसे बसाया था, इसकी इनॉग्रेशन की थी, मैंने इसका इफ्तिताह किया था इस करीम ग्राउंड का। और आज एक बंजर पड़ा हुआ है, मंशियात फरोशों की, कचरे की आमाजगाह है, जराइम पेशा लोगों की आमाजगाह है। ये पुलिस कहाँ पर है, रियासत कहाँ पर है, हुकूमत कहाँ पर है, इंतजामिया कहाँ पर है, ये सारी बातें मैंने यहाँ बता दी। अब इन्हीं खतूत पर इन्वेस्टिगेशन हो, जो जिला इंतजामिया इस पार्क को बनाए, मंशियात फरोशों, जराइम पेशा लोगों से इसे आजाद कराए और लोगों के लिए खेलने की जगह बनाए, जहाँ हमारे बेटे और हमारी बेटियां जहाँ जा सके। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं दे के जाऊंगा आपके यहाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि पीछे हो जाएगा अंकल, मेरी गुजारिश ये है कि अब ये आखिरी वाकया होना चाहिए, अब इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर वैसे तो इस वाकये के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम कोरंगी की मेन शाहरा को हम जाके ब्लॉक करेंगे, हम जाकर बैठेंगे। आपको इंसाफ दिलाने के लिए मेरी बहनें, ये हमारी काउंसिलर नहीं, बुशरा बाजी इस इलाके की, मुसरत बाजी मेरी कराची की इंचार्ज, रुमा बाजी हैं, ये सब आई हैं सारे, और तहरीकी साथी भी आए, रजाकार भी आए, अहले मोहल्ला भी हैं, ये हमारे बच्चे भी मौजूद है इस मौके पर। ये सब भी माहम के लिए इंसाफ चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमें भी बराबर का पाकिस्तानी समझा जाए। उनके भाई के साथ वाकई हुए, कुछ बात करना चाहते हैं, वो अलग कर लेंगे, ये मीडिया के सामने की बात है, वो बाद में कर लेंगे। अच्छा फारूक भाई, ये जो ट्रेन आ गया है सानिया, जो भी वाकया हो गया था उसका नाम दे देते हैं कि सानिया से पहले 10 बजे बच्ची अगवा हुई है और रात सुबह 5 बजे मिल रही है। इस दौरान अगर इस इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो मिल जाती है, सानिया की जरूरत नहीं आती। अब मुजम्मत के लिए सब आ जाते हैं कि मुजम्मत सानिया, ये सानिया वाला ट्रेंड कब खत्म होगा हमारे पास? मेरे बेटा, मैं तो कह रहा हूँ अगवा होना भी सानिया है और अगवा के बाद जो कुछ होता है वो ये ना सानिया वाला, मेरा यही कहना है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि इस इलाके के वो रजाकार जो थे सारे, उनके साथ पुलिस का रैपो, यही तो बता रहा हूँ मैं कि कम्युनिटी पुलिस हो कि जाके बैठ जाए वो नौजवान और कहे जब तक वो बच्ची बाजियाब नहीं होगी, हमारी बेटी हम सबकी बेटी है। आज किसी की बेटी के साथ हुआ, कल हमारे घर में ही आग लगेगी बेटा। पहला रिस्पांस मोहल्ले से, कम्युनिटी से। तो मैंने कहा वो नहीं है ना, डीएमसी, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और जो वार्डन है, सिटी वार्डन, उनके रोल को बढ़ाया जाए, सिटी वार्डन के, उन्हें कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम दें। वो ऐसी की तैसी कर देंगे जो मंशियात फरोश साले बैठे होंगे, उनके पास आम असलहा ना हो आतिशी, लेकिन डंडा जरूर हो, डंडे से मरम्मत कर देंगे बेटा। सब चीजें कर सकते तुम्हारे साथ मिलके। तुम्हारी लिस्टों के इस इलाके के 50 नौजवान हैं जो हर रोज 5 नौजवान ग्राउंड पे और ड्यूटी देंगे इधर उधर। अगर ये निजाम बन जाए सारे मोहल्ले महफूज हो जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं, कम्युनिटी पुलिस का निजाम, रजाकारों का निजाम, नेबरहुड वॉच एंड वॉट कहते हैं कि मोहल्लों को महफूज बनाए, महफूज मोहल्ले, महफूज शहर, सेफ सिटी, सेफ नेबरहुड, इसका कॉन्सेप्ट इसको उजागर करना है। मैं वही बात की जो तुमने की। हमें भी इतला बेटा, हमें भी इतला जब आए, अगर किडनैपिंग की होती, खुदा की कसम जमान टाउन में मैं फोन करता और मैं भी हिलाता इनको, अभी भी हिलाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा। देखें, एक जमाने में यहाँ बैरियर लगाए जाते थे, उससे डकैतियां भी नहीं होती थी और हमारी बेटियां भी अगवा नहीं होती थी, याद है ना? एक जमाने में होता था। अगर हुकूमत हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, हमारी बेटियों की असमतों की हिफाजत नहीं कर सकती, उनकी जिंदगियों की हिफाजत नहीं कर सकती, हमारे महफूज और रोशन मुस्तकबिल की जमानत नहीं बन सकती, तो फिर हमें इजाजत दे, हम अपनी हिफाजत का खुद बंदोबस्त करते हैं। हम कर लेंगे, हम निबड़ लेंगे इन साले ज्यादती करने वालों को भी, अगवा करने वालों को, डकैतियां डालने वालों को और जराइम पेशा अनासर को। हमारी ये बच्चे, हमारी ये नौजवान इंशाअल्लाह ताला, इनकी रजाकार फोर्स
नेबरहुड वॉच एंड वार्ड में कम्युनिटी पुलिस सिटी वार्डन के साथ मिलके खुदा की कसम हम हर मोहल्ले को महफूज मोहल्ला बना देंगे। ये हमारा आगे का नैरेटिव है। नौजवानों की तहरीक बनाएंगे, पूरे शहर को महफूज करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। अब मैं मेन मीडिया से बहुत शुक्रिया। मैं सोशल मीडिया